I want. Okay, so we are recording this session. I would like to see your mocks. Could you share me the links to your mocks, the one where you have scored the highest? And if you're comfortable, can you share your scores with me? Don't share the scores, share me the blue lines. Because blue lines basically tells where you are leaking. So share me the blue lines of of your latest exam, and I will tell you what exactly you're doing wrong over there and what you should be doing right. And then I will ask you for your mock exams link, and I will go through your mock exams and tell you what you're doing wrong. So my strategy is that I will give you some guidance and I will ask you to practice on it. If you see any improvement, then I will ask you to approach me. Or if you are comfortable, then you can ask me and I will give you tuitions if you want. Otherwise, if I see that I'm guiding you and you are not able to perform, that means you're not listening to my suggestions. So then I don't entertain that person. Okay. So could you share your blue lines? Okay. Okay. You can WhatsApp me your blue lines. I shared you. You can check your WhatsApp. Yeah. Share me, send the blue I line. already shared with you. You have? I didn't get the message. Okay, let me open those blue lines here so you could follow me properly. Meanwhile, what do you think that could be the problem? Okay, you got 68 in speaking, 63 in listening, 64 in reading, and 65 in writing. So that means you need to work a lot. First of all, let's go through the blue lines. I'll share the blue lines screen with you. Just give me a second. Obviously, I read my skill assessment. The problem is extended speaking, which is cover the describing and retail lecture, and That is external writing, which uh, cover even essay without part. asking you, But even without but going through your mock test, okay. I can tell that what mistakes you were doing, you are doing in speaking part. You must be following a template. Okay, let's. Obviously the So this other is the biggest the mistake. template I am following, This is the biggest mistake. maybe You the are error not in the. supposed to follow a template. This is the biggest wrong thing a person is doing, right? How? I tell you later. First, let's start with this. It's reproducing spoken and written language. You are saying you are using template, and I say template is worthless. It's useless. It's not needed. It's just 1% important. Why? Because if you look at this first blue line, reproducing spoken and written language, they say, how are you reproducing it? If they are giving you something, a question, how are you reproducing it? Like read a lecture is something and you reproduce it. They already give a lecture and they reproduce it. But the thing is, when you go for templates, usually people are concerned, more worried about their template. They want to, when there is a question, they want to they are only concerned that they are able to portray or speak the whole template as soon as possible before the recording ends, which is wrong because the wordings in the template is not the answer to the question they are asking. That is not the reproducing the actual content. Reproducing is that if they have said something and you have to So reproduce it as it can is. can you explain this point again? I did not listen proper because. सिंपल है देखिए टेम्पलेट में जो अल्फाज होते हैं ना वो सवाल का जवाब नहीं होता। Sorry, अब वो आपसे एप्पल के बारे में पूछ रहे हैं और आपका टेम्पल दुनिया भर की टेम्पलेट बातें कर रहा है आपकी मगर एप्पल के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा, तो वो फजूल है। कोई भी टेम्पलेट आप उठा के देख ले, उसके जो अल्फाज होते हैं, उसके जो वर्डिंग्स होते हैं, क्या आपको लगता है कि वो किसी सवाल के obviously जवाब होते हैं? नहीं होते। आज मैंने एक पेपर, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आई टुक एन एग्जाम। मैंने एक सवाल दिया, मैंने obviously आप इसको स्टूडेंट से एक सवाल पूछा, बिलीव मी उसने दुनिया भर की कहानी कर दी, बट जो मुझे चाहिए था वो उसने मुझे नहीं दिया। उसने पूरा पेज लिखा, 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, पूरा पेज लिख डाला।
मगर मुझे एक वो चीज चाहिए थी जो कि नहीं थी। इसका मतलब उसने आय बाय शाई कर दिया, बस वो कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो रिप्रोड्यूसिंग का ये है कि अगर आपसे वो कुछ पूछ रहा है और अगर आप उसको वो जवाब नहीं दे रहे, ये एआई है, एआई एडवांस नहीं है मगर सोफिस्टिकेटेड है। आपको पता है व्हाट्सएप में भी एआई आ गया। आप उसको एक सवाल लिखते हो कि जी मुझे हाउ डू व्हाट इज एन एप्पल, तो आपको पूरे एप्पल के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन होगा वो देगा, राइट। उसमें जो भी अल्फाज होंगे वो रेलिवेंट टू एप्पल होंगे। अब टेम्पलेट का मसला ये है कि टेम्पलेट की जो अल्फाज है उसमें कोई भी वर्ड रेलिवेंट होता नहीं है। टेम्पलेट का मतलब सैंपल है, वो एक तरीकेकार है कि जी आपने सेंटेंस को इस तरह बोलना है, इस तरह स्टार्ट करना है, इस तरह लेके चलना है और इस तरह एंड करना है। बाकी कहा उस माइंड में रखते हुए आपने सवाल का जवाब देना है। First, it was when the PT was new, people used to just say what is in the template and they used to get marks. They used to get marks because AI was not that sophisticated. Later on, they realized that they have to put some additional words, keywords relevant to the topic. So that also worked. With the passage of time, they have realized that keyword is not important, not enough. You have to say some phrases. So reproducing spoken and written is like summarize written text. You have to reproduce what is being said, like write from dictation. So dictation is that they are saying something and you have to reproduce it as it is. So their template is not necessary. Written lecture is something they said it and you have to reproduce it as much as possible in the same way that is reproducing. So if they are talking about environment and there are 70 words that are relevant to environment, and if you're taking a template and the words over there are like around 30 and none of the word is relevant to the topic, then it's useless. So at the end, the crux is the template are useless. They are not worthy enough. They are just to help you to make a complete proper एक sentence structure। अगर किसी को weakness है एक जुमला बोलने की, तो उसके लिए template helpful है कि जी जहाँ blank है वहां पे वो content बोल दे, मगर उस पे उसको 100 एंड 100 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने टेम्पलेट यूज किया है तो आपको जस्टिफाइड मार्क्स मिली। इतनी जो ब्लू लाइन आपकी आ रही है ना, दैट इज जस्टिफाइड बिकॉज इतना कंटेंट आपने बोला होगा और उस हिसाब से उसने आपको मार्क्स दे दिया। रिमेनिंग जो बचा है वो दैट इज बिकॉज यू डिडंट प्रोवाइड द कंटेंट, यू डिडंट रिप्रोड्यूस व्हाट वाज बीइंग आस्क्ड। फिर एक्सटेंडेड राइटिंग, दिस इज आल्सो अ टेम्पलेट, मे बी यू फॉलोड द टेम्पलेट ब्लाइंडली। हाउ मेनी लाइन्स डिड यू राइट ऑन योर ओन अबाउट द टॉपिक? ऑब्वियसली मैंने इसको टेम्पलेट ही फॉलो किया, लेकिन मैक्सिमम ये था कि कीवर्ड्स को मैंने पुट किया जस्ट टेम्पलेट के अंदर। मिस्टेक ना, क्योंकि वो तो एआई ना उनका ना थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। एआई में आप हाँ, सवाल पूछो वो आपको जुमला बना के देता है, कीवर्ड्स नहीं देता। तो एआई इतना तो है, उसको इतनी सेंस तो है कि जुमला बना हुआ है और जुमला बनाना बड़ा आसान है। लाइक एप्पल इज अ फ्रूट, ये बड़ा आसान है। कीवर्ड मुश्किल है। येलो, एप्पल हेल्दी, रेड, आयरन। तो वो लिखना उसको आपको बड़ा सोचना पड़ता है। फ्रेज लिखना बड़ा आसान है, जुमला लिखना बड़ा आसान। So again, justified marks, they gave you you just wrote the template, but you didn't provide the relevant content. अगर आप 4 लाइनें भी relevant लिख देते ना आपके मार्क्स फुल आने थे, तो इतने तो उसने जस्टिफाइड आपको दिया। शॉर्ट राइटिंग समराइज रिटन टेक्स्ट वाली बात हो जाती है और फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग की बात हो जाती है और आपकी राइट फ्रॉम डिक्टेशन की, तो वो भी आपने जो राइट समराइज रिटन टेक्स्ट है वो भी शायद रेलिवेंट चीज नहीं दी उनको। स्टैंडर्ड स्पीकिंग, अगेन आपने डिस्क्राइब इमेज में प्रॉब्लम की है, डिटेल लेक्चर में प्रॉब्लम की है, क्योंकि जो आपसे मांग रहा है आपने वो नहीं दिया। डिटेल लेक्चर में 4 लाइनें कम से कम आपको लेक्चर की एज इट इज बोलनी पड़ती है। ठीक है, आपने शायद कीवर्ड्स लिखे हैं टेम्पलेट में, ऐसे ही है। मैंने कीवर्ड नहीं लिखा। रिटल लेक्चर में नहीं, मैंने कुछ फ्रेजेस यूज किए हैं, हाँ लेकिन सही। उसको टेम्पलेट के अंदर ही रख के यूज किया। लेकिन ऑब्वियसली ये इस चीज के ऊपर तो मैं अश्योर हूँ कि मैंने कीवर्ड्स जो यूज किए हैं ऐसे नहीं है कि सिंपल कीवर्ड यूज किया है। कीवर्ड के साथ 2-3 उसके वर्ड एक्स्ट्रा थे, मतलब कि आप कह सकते हैं वो फ्रेज एक बन रहा था, लेकिन मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मार्क्स दे- कैसे कम हो सकते हैं इन दोनों पार्ट्स में। देखिए 70 मार्क्स होते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट के और समराइज स्पोकन टेक्स्ट के। ठीक है, 70 में से आप अपने खुद टेम्पलेट में गिने कि कितने वर्ड्स हैं। अगर 70 में से 30 वर्ड्स आपके टेम्पलेट के गए, पीछे बचे कितना, तो उसमें फिर भी उसने जस्टिफाइड मार्क्स दिए हैं आपको। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 100 वर्ड्स आपको कितने चूज करने पड़ेंगे मिनिमम? 70 वर्ड्स है ना। ठीक है, मैंने जब एग्जाम दिया हम्म। था, मैंने जब प्रैक्टिस भी की थी, तो मेरा 2-3 लाइनें ऐसी थी कि जो प्योर लेक्चर की थी, वो टेम्पलेट की लाइनें नहीं थी। हम्म। सही। पूरा फ्रेज प्योर फ्रेज था, ठीक। टेम्पलेट का कुछ भी नहीं था उसमें। हम्म।
तो जब लिखना ही ठीक है। है तो लेक्चर की चीजें लिखो ना। तो भूल भी जाता है टेम्पलेट, ये मतलब लिखना ही है 70 वर्ड्स, तो टेम्पलेट की लिखो, क्योंकि एआई है ना, एआई के तो अच्छा एप्पल के बारे में इसने फ्रूट भी कह दिया, आयरन भी कह दिया, रेड भी कर दिया, हेल्दी भी कह दिया, गुड फॉर हेल्थ भी वर्ड यूज कर दिया, डॉक्टर वो है ना, एन एप्पल अ डे गिव्स अ डॉक्टर अवे। फ्रेजेस नहीं, ये नहीं लिखने, इडियम्स मना है, स्ट्रिक्टली मना है। मगर फिर भी उसने डॉक्टर भी कह दिया, फॉर ग्रोथ। तो मतलब ये रेलिवेंट वर्ड्स हैं जो एप्पल से मैच होते हैं, तो उसने ये कह दिए हैं। अब टेम्पलेट के अल्फाज रेलिवेंट नहीं होंगे इसलिए, फिर भी उसने जस्टिफाइड मार्क्स आपको दिए। शॉर्ट स्पीकिंग में आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें आई डोंट नो आपने कितने ठीक किए। मल्टीपल स्किल्स कॉम्प्रिहेंशन में वो आ जाती है आपकी राइट, फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग राइटिंग आ जाती है, क्योंकि उसमें मल्टीपल आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से चूज किया जाता है। तो उसमें भी आई डोंट नो आपका कैसा है, वो मॉक देख के मुझे पता चलेगा। सिंगल स्किल कॉम्प्रिहेंशन में भी वही बात हो गई कि आपने जैसे फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग है और फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग है, तो उसको आपने कैसे कॉम्प्रिहेंड किया है, सुन के और लिखने वाली बात हो रही है ना, सुनने वाला लिखने वाला सिंबल बना हुआ है। सो लेकिन इसमें मतलब देखे ना बहुत थोड़ा स्कोर है। हाँ, तो थोड़ी छोटी 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 कोई ब्लंडर्स हुए हैं जिसकी वजह से हुआ है। अगर आपको उसकी पता होता, इफ यू वुड हैव नोन दैट व्हाट एग्जैक्टली इज being asked by the, because maybe I was able to judge it because I'm a teacher, तो मुझे इतनी इतनी कॉपियां चेक करनी पड़ती है कि मैं देखती हूँ कहानियां इधर उधर की होती है, रेलिवेंट स्टफ कोई नहीं होता। मैं उनको कहती हूँ, आप एक वर्ड में मुझे रेलिवेंट हम्म, दे दोगे ना, मैं आपको मार्क्स दे दूंगी, मुझे एक लफ्ज रेलिवेंट दे दो। तो एआई ने भी यही किया हम्म। आपके साथ, ठीक है। नाउ इफ यू आर ओके विथ इट, कैन यू शेयर मी विथ मी योर मॉक्स, एनी वन मॉक, the way in which you scored the highest. जिसमें मैंने हाईएस्ट गेन किया अभी मेरे पास मॉक है नहीं, मेरे पास अभी इंडिविजुअल कुछ पड़े हुए हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता आपने हूँ। क्यों नहीं है, किसी और का शेयर किया था? अगर एक मिनट, फिर मेरे पास पुराने मॉक पड़े हुए हैं, वो मैं आपसे ठीक है, शेयर कर सकता हाँ, हूँ कोई अपने। भी कोई भी मुझे दिखा दे, उससे भी आई कैन टेक एन आइडिया दैट वेयर यू आर स्टैंडिंग। ओके, मैं आपसे अपना मॉक जो मेरी ऑफिशियल ऐप यूनी के You ऊपर know है। how to share it now. You go there, you open the mock, where there is written check result, उसके नीचे एक बटन होगा शेयर रिजल्ट्स के नाम से, उस पर क्लिक करेंगे, लिंक आएगा, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। एक सेकंड में आपको शेयर कर रहा हूँ, ऐसे ही शेयर कर। ऐसे नहीं कीजिएगा, मुझे लिंक चाहिए। नहीं, वो मैं आपको लिंक ही शेयर कर रहा हूँ। सही। एक सेकंड, ना सिस्टम सिस्टम से मैं देख के आपको कर रहा हूँ। मोबाइल में नहीं अच्छा, आता है। फॉर एग्जांपल जो अभी टेम्पलेट के पार्ट की हम बात कर रहे थे, हम्म। अगर रिटेल लेक्चर की बात की जाए, अब मैं उस चीज के ऊपर एक नॉर्मली मैं एप यूनी के ऊपर भी प्रैक्टिस करता रहा हूँ, एप यूनी के ऊपर उन्हीं टेम्पलेट्स के ऊपर मुझे वो एक अच्छा स्कोर दे रहा था, देख, और आईएमई है। लेकिन सेम स्ट्रेटेजी को मैं उधर उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन मुझे वो उस चीज का अभी तक ना प्रॉपर एक डायग्नोज नहीं कर पाया कि प्रॉब्लम अब किधर से आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, आर यू डन विथ योर क्वेश्चन? ऑब्वियसली डन मेजर क्वेश्चन। प्रॉब्लम ये है, ऐप यूनी और एनी अदर एप्लीकेशंस आर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, ठीक है। दे डोंट हम्म। हैव दैट सेम एआई एज अ Pearson as the PTE has, and they keep sophisticating their software. It's not advanced, it's sophisticated, right? So app uni is working on an old system of AI, so as the where the templates worked. But while you will be while I will be checking your mock, I will tell you, even app uni is biased in the template. The template they provide and the answer key that they provide is different. Just open the describe image template given by the app uni, and also open any describe image picture and see their answer key. You will find a difference. Like, let me prove it. Let me prove it. So App Uni is basically, or any other is a third party application, they will give you marks. They are unable to reach the same quality as of AI as Pearson has. So you cannot totally believe in App Uni. It's just a kind of a simulation. It's very good for simulation and practice, but it's not the real exam. You know how simulation works, right? The pilots go for simulation, and real time flight is a different thing. ऑब्वियसली जब चीजें उसको कहते हैं आप इम्प्लीमेंट पे जाते हैं स्टेज के ऊपर में भी,
वो उनका एक डिफरेंट सिनेरियोज होता है, लेकिन वही चीज है ना कि आपके पास इसके अलावा असेसमेंट टूल भी तो नहीं है ना, आपने तो इसी को ही फॉलो कर, मगर मैं आपको बताऊं, या तो हो ना कि आप। फिर भी ऐप यूनी इतना बुरा भी नहीं है। मैंने ऐप यूनी पे ही प्रैक्टिस की है। अच्छा, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। ठीक है, फॉर अ सेकेंड, राइट? ओके। देखिए, फॉर अ सेकेंड, लाइक देयर आर डॉग्स ओके, एंड देयर मैं आपसे गिविंग। एक एक मिनट अपना रिजल्ट शेयर कर लूं, फिर मैं इस चीज को देख, ठीक। आप वो क्या कहते हैं इसका, जो ये एक मॉक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये कोई पुराना मॉक है, 2 मंथ पुराना, जो मैंने दिए थे। और अभी रिसेंटली मैंने जो दिया इसके इसके ऊपर मैंने कोई एक मॉक दिया था, वो मेरे पास अभी पड़ा नहीं हुआ। एनीवेज, 1 इज इनफ। सो 68, तो मैंने आपको कहा था ना, मैनिफेस्टी 80 का करें ना, तो ही आप इसमें फॉलो करेंगे। Now let's go through it one by one. Speaking, your read aloud is not that bad, but not that good. जो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दी थी, इसमें मैंने कुछ 4-5 मॉक दिए थे, इसमें जो है ना, कुछ तो नॉर्मली इसको। रीड अलाउड के भी कुछ ट्रिक्स होती हैं। योर repeat sentence is good somewhere and somewhere it is bad. इसमें भी थोड़ी गाइडेंस आपको चाहिए। मैं स्कोर्स देखती हूँ आपके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट्स फ्लक्चुएट होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये, हाँ, हर सात है, हर क्वेश्चन की एक सेवन, नौयत है। 7 के करीब। देखिए, बिकॉज जी आपको जी। रीड अलाउड में 5 क्वेश्चंस क्यों देते हैं? हर क्वेश्चन की अपनी एक नौयत होती है उसको कैटर करने की। ठीक है, रिपीट हम्म। सेंटेंसेस 12 क्यों देते हैं? हर क्वेश्चन की अपनी एक नौयत है। डिस्क्राइब इमेज एक या दो क्यों आती है? डिटेल लेक्चर एक क्यों आता है? फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग राइटिंग 3-4 क्यों आती है? उसमें नौयत है, वो आपको डिफरेंट तरीके से जज करना चाहता है। तो कहीं आप एक ही तरीका लेके सारे क्वेश्चंस पे चल रहे हो, तो फिर आपका स्कोर इसी तरह फ्लक्चुएट करेगा। आपका डिस्क्राइब इमेज आ गया, वो इसमें भी आपकी ना, आप, मुझे लग रहा है आप टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हो। तो बस, जो आपका ऐप यूनी थर्ड पार्टी है, मगर यूजली मिरर ही करती है। जो ऐप यूनी में आपके मार्क्स आते हैं वो रियल एग्जाम में एक +-5 मार्क्स आ रहे होते हैं। वो सच डिफरेंस नहीं। मेरे 74 थे अभी रिसेंटली में, तो उसमें जो इंडिविजुअल की, असल में मैंने मॉक नहीं दिए, इंडिविजुअल की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैंने की है। तो इंडिविजुअल को अगर मैं लेकर चलता हूँ, मेरा स्पीकिंग पार्ट मुझे काफी लेग करता था स्टार्ट में, तो मैंने खैर उसके ऊपर काफी कवर किया, लेकिन वैसा स्कोर उसमें जंप नहीं लगा जैसा मैं सोच रहा था। अब इंडिविजुअल नहीं, जो मेरे पास स्पीकिंग सेक्शन के पड़े हुए, जब मैं तक अगर आपसे वो भी शेयर करूँ तो। हाँ, जब जी तक जी आपके बोलिए। 80 नहीं आते ना मॉक में, तब तक आपको एग्जाम की तरफ जाना नहीं चाहिए। जब तक एग्जाम लेकिन लेकिन कुछ कुछ लोग ये भी तो कहते हैं ना कि एपीओली आपको नॉर्मल जो होता है ये स्कोर कम देता है, खासतौर पर स्पीकिंग। हाँ, प्लस माइनस देखिए ना, जब यहाँ 80 है तो आपको इतना पता था ना कि अगर एप यूनी कम भी दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ आप, फॉर एग्जाम्पल एप यूनी कम दे रहा है, अगर आपके 65 आ रहे हैं तो वहाँ तो आपके 70 आए ना। अगर आप 68 भी आ रहे हैं तो वहाँ हाँ। आपके कितने बनेंगे? 73 हम्म। बनेंगे। 5 का मार्क्स का, चलो हम्म। 10 भी लगा लिया, तो यहाँ 65 हम्म। अगर आ रहे हैं तो वहाँ तो 75 बने ना आपके। या अगर हम्म। 68 आए हैं तो आपके वहाँ 78 बने ना। लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि एपीओली थोड़ी सी इसका टेस्टिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड अगर भी आप हुआ, दूसरे चलो हार्ड पैरामीटर। भी हुआ तो कितना हो जाएगा? 10 बहुत बड़ी गुंजाइश तेरी में, अगर आपके पास 68 है, हाँ। 10 भी लगा लो तो 78 बना ना। यहाँ पे 70 है तो बहुत ऊपर ऑब्वियसली ऑब्वियसली 80 आप इस। 80 पे आ गए, राइट? हम्म। रीडिंग में आप 60 पे हो तो आपके 70 बने। यहाँ 70 है तो चलो आप 80 पे हो, राइटिंग है तो चलो 84 पे हो, बट फिर भी आप एक हम्म। मॉड्यूल में तो कम हो ना, हम्म। राइट? हालांकि आपके 74 भी है, फिर भी आप 68 पे खड़े हो। तो बहुत हुआ अगर हमने आपको 10 भी दे दूं, हालांकि मुझे लगता है कि 10 नहीं है, +-5 है, 5 की गुंजाइश है, 10 की नहीं। हम्म। फ्रॉम माई लेकिन सारे हैं बॉर्डर लाइन के ऊपर ही खड़े हुए स्कोर जो एग्जैक्टली, मुझे अभी तक एग्जैक्टली, लगे। एग्जैक्टली। अगर आप यहाँ 80 लाते ना, तो वहाँ आप 90 बन। हम्म। से देखिए ना, आपने मैंने टेम्पलेट पे अगर सेम यूज किया है, आपके ख्याल में क्या लॉजिक हो सकती है कि ये स्कोर के फ्लक्चुएशन में, अगर आपकी स्पीड वही है, प्रोनाउंसिएशन आपकी कोई इतनी नहीं मैं बुरी आपको ना नहीं है, तो मैं फिर। आपको 2 मिनट में बता सकती हूँ आपने क्या गलत किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रीड अलाउड पढ़ने की देती हूँ। सिर्फ पढ़ना है, हम स्कोरिंग नहीं ठीक देते। है। ठीक है, और आप पढ़िएगा फिर मैं पढ़ूंगी, फिर बताइएगा फर्क क्या है, खुद बताएंगे आप। पढ़ें इसको।
नहीं, ऑब्वियसली मैं आपको पढ़ता हूँ अभी। हम्म स्टार्ट करूँ? great. स्टार्ट करें। In Germany, over 10,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as superabsorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to substantial improvements. ठीक है, अब ये आपका तरीका, अब मेरा सुनिए। इन जर्मनी over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as superabsorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to substantial improvements. अब आप फर्क बताओ, कोई एक बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आपकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी वो क्लियर होगी। ठीक है, वेरी गुड। अब क्लियर क्यों है ये आपके बताइए। हाल पिच की इन्वॉल्वमेंट होती है आपके ख्याल में प्रोनाउंसिएशन के उसके बेस्ट होने में? चले मान भी लिया इसकी भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो आपको हम्म। प्रोनाउंसिएशन क्लियर कैसे सुनाई दी या पिच कैसे सुनाई दी? ऑब्वियसली उसकी पिच मेरे ख्याल में क्लैरिटी लेकर आती है आपकी हाँ, वॉइस के अंदर। तो क्लैरिटी आपको मेरे वॉइस में क्लैरिटी कैसे नजर आई है? आपको पिच कैसे आपने जज किया? ऑब्वियसली ऑब्वियसली उसकी बेस यही है ना कि जो मेरे पास जो मुझे सुनाई दे रही है चीज, हम्म जिस तरह पैरामीटर तो यही है ना कि मैंने उनको एक उसके की को लेकर चला हूँ कि मे बी ये पिच की इन्फ्लुएंस करता है कि जो कि क्लैरिटी कास्ट करता है। नहीं ठीक है, जो मुझे प्रॉपर ठीक है। प्रॉपर उसका तो एक सुनाई इसलिए दी है। आपको अगेन वेरी गुड, आपने कहा मुझे प्रॉपर सुनाई दी क्योंकि मैंने प्रॉपर बोला है। अब आपका क्यों प्रॉपर बोला है कि मैंने भाई इंसानों की तरह नॉर्मल टोन में बोला है, नॉर्मल स्पीड में बोला है, नॉर्मल पिच में बोला है। कोई मैं शाउट नहीं करी, हम्म। कोई मैं भाग नहीं रही। ऐप यूनि का यही मसला है, ऐप यूनि में अगर आप फास्ट बोलो तो आपको मार्क्स आते हैं, स्लो बोलो तो यही है मार्क्स यही कटता है। है ऑब्वियस, मैंने सेकंड, सेम सेम क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट उधर की है। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया, मैंने जहाँ रुकना चाहिए था वहां मैं रुकी हूँ हम्म। तो ही मैं बोल सकी हूँ, राइट। हम्म। आप कॉमास एंड फुल स्टॉप पे नहीं रुक रहे हैं, यू डिडंट हम्म। स्टॉप एट दैट। ये नेचुरल पॉजेज है और बिलीव मी ये रीडिंग में मार्क्स देते हैं। क्योंकि देखिए कॉमास दिए ही इसलिए गए हैं, फुल स्टॉप्स दिए ही इसलिए गए हैं कि सबसे पहले आप क्लियर बोलो, ठीक है। दूसरा, आप सांस लेने की आपको गुंजाइश हो। तीसरी, आपको सेंस हम्म। हो कि जी कॉमास पे कितनी देर की पोज होती है, फुल स्टॉप पे कितनी देर की पोज होती है। तो क्योंकि मैंने हम्म। नॉर्मल बोला है, कोई मैं भाग नहीं रही, तो मेरा एक एक लफ्ज क्लियर है क्योंकि मैं एक एक लफ्ज पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। मेरे साथ भी ये हम्म। प्रॉब्लम था, ऐप यूं नहीं थी तो मैं ये देख रही थी, जब मैं भाग रही थी तो मार्क्स आ रहे थे, जब मैं नहीं कर रही थी तो मैंने ना किसी को ना अपनी, मैंने उसको आपके सामने, मेरे सामने तो फोन है राइट, मैंने उसके सामने टेक्स्ट नहीं था, मैंने अपने रिकॉर्ड करके उसको भेजा। मैंने कहा सुनो और मुझे बताओ। कह रहे कुछ समझ नहीं आ रही, तुम क्या नहीं क्या बोल रही हो, लफ्ज ही क्लियर नहीं है। ठीक है, फिर मैंने आहिस्ता बोला और मैंने इसको भेजा, हम्म। मैं कहा अब कह रहा है क्लियर है। उसके सामने तो फॉन्ट मटेरियल भी नहीं है ना कि उसको फॉलो कर सके। तो आपकी क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी हम्म। प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट तब होगा ना जब आप लफ्ज प्रॉपर बोलेंगे जब आप स्पीड से हम्म। बोलेंगे, एक नॉर्मल टोन में बात करेंगे, राइट। दिस इज द मेन थिंग कि आपने हर सवाल को नॉर्मल टोन में बोला। इट्स सिंपल, देखें, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कैसे कि द मिनट यू स्टार्ट स्पीकिंग, एआई आपके मार्क्स, वो आपके बारे में एक इंप्रेशन बना लेता है कि जी ये मेल है, ये एशियन साउंड कर है, इसकी ये पिच है, ये स्पीड है। अब क्या होता है, शुरू शुरू में बंदा एक्साइटेड होता है, स्पीड में बोलता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो थकना शुरू हो जाता है, उसका टोन और पिच और सारी ऊपर नीचे हो जाती है। होता क्या है कि एआई भी फिर मार्क्स को हम्म। फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है, वो इंप्रेशन खराब हो जाता है उसका। तो लोग एक्साइटेड होते हैं, जाते साथ ही जोर जोर से बोलते हैं, फिर इंस्ट्रक्टर आता है कहता है जी हल्का बोलो है, वो सारा पिच आपने सारी गड़बड़ कर दी। पिच, वो पिच, आप पिच से हट गए, आप हम्म। प्रोनाउंसिएशन से हट गए, आप टोन से हट गए, आप एक्सेंट से हट गए, एवरीथिंग।
तो जस्ट कीप इट नेचुरल, जस्ट कीप इट नॉर्मल, कि वो एआई जो है वो पिक कर ले कि जी अच्छा इसने ये अल्फाज कह दिए, राइट। ये बात हो। अच्छा, डिस्क्राइब इमेज की जो आपने मिस्टेक की होगी, आप तस्वीर पढ़ेंगे और एक तस्वीर मैं पढ़ूंगी, फिर देखिएगा और बताइएगा कि राइट ओके, आप इस तस्वीर को आप पढ़ें। आपको प्रिपेयर का टाइम मैं चाहिए स्टार्ट करूं? तो आप कर दो। नहीं, कोई नहीं, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। सही। ओके, आई वांट टू कंटिन्यू। कर दे, कर दे। स्टार्ट करूं? हम्म। In front of me, I can see a picture. This graph gives the information about the number of US households keeping pets. I can see the different information giving the total number of contribution is 84.9 million. Dogs contribution is 63.4 million. I can see the highest value which is 63.4 million. The lowest value which contribute 5.4 million. Horses contribute 1.6 million. I can see the maximum and the minimum value. I can see the different colors and it's very informative for me. I think it is enough. Thank you. ओके, अच्छा अब मैं पढ़ती हूँ। Here's an informative picture in front of me, which is about number of US households keeping pets. The highest value is for total, which is 84.9 million. The lowest value is around 1.6 million for horses and saltwater fish. There are around values of 63.4 million for dogs. Cats are at 42.7 millions. Freshwater fish is at 11.5 million. Birds are around 5.7 million. Reptiles are about 4.5 million. Others contribute to 4.5 million. In conclusion, it is a very important picture. आप फर्क बताएं। फर्क ये था कि आपके बीच में स्टक हुई एक दो प्लेसेस के ऊपर। ठीक है। ठीक है, उसके और बाद ये था कि ए, एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपका रिदम थोड़ा सा स्लो था। ठीक है, मुझे ऐसा लगा। सही, ठीक है। ठीक हो गया। तो मे भी हाँ, अच्छा अब ऑब्वियसली आप मैंने कहाँ पे उसको लैग किया, आप उसको। एक ये कि मैंने नॉर्मल टोन में कहा, ठीक है। दूसरा, मैंने हम्म। पहले हाईएस्ट वैल्यू बोल दी सिस्टमेटिकली और लोएस्ट वैल्यू बोल दी सिस्टमेटिकली। उसके बाद जो मेरी हम्म। चीज थी वो ये कि मैंने हर वो चीज पढ़ लिया जो तस्वीर के अंदर था, हम्म। ठीक है। तो मैंने ठीक है। वो कंटेंट हम्म। रिप्रोड्यूस कर दिया जो वो चाह रहा था। ये कहता है डिस्क्राइब इमेज, इमेज को डिस्क्राइब करें। अगर आप टेम्पलेट के उठा के अल्फाज कहना शुरू कर देंगे तो वो डिस्क्राइब तस्वीर के अंदर है ही नहीं, तो कहाँ से हम्म। मालूम? मैंने हर वो चीज पढ़ ली जो तस्वीर के अंदर है। और इसका सबूत कैसे सीखा मैंने, ये नीचे आप इसका आंसर की देखें। ये मैंने सीखा कैसे, मुझे कैसे पता चला कि बोलना कैसे है? पढ़ें इसका आंसर। द फॉलोइंग The पिक्चर। following picture हम्म। gives the information about number of US household keeping pets. From the bar chart, we can see the value of cats in 42.7 million. The value of dogs is high, which is 63 million. From the chart, we can see highest values of total, which is 84.9 million. The lowest value is of horses and saltwater fish, which is 16 million. In bar chart, there are also other items, including fresh water and birds. In conclusion, this bar chart is very informative. ठीक है। अब जब मैं कह रही थी क्या मैंने नीचे पढ़ा था, मगर मेरा आंसर कुछ मिलता जुलता था ना। Hmm. कैसे? लॉजिकली बात है। यहाँ पे कोई टेम्पलेट फॉलो नहीं हुआ। टेम्पलेट सिर्फ ये हुआ कि आपने पहली लाइन को जो जो तस्वीर के अंदर है वो हमने पढ़ा सिस्टमेटिकली। हाँ, सिर्फ ये लॉजिक थी कि आपने हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू और वर्ड कंक्लूजन जरूर बोले। अब आपने जो हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू का आपने कहा देयर इज अ हाईएस्ट वैल्यू एंड देयर इज अ लोएस्ट वैल्यू। भाई किसकी हाईएस्ट वैल्यू है, डिस्क्राइब तो करो। किसकी लो वैल्यूस्ट है, डिस्क्राइब तो करो। ग्राफ हमेशा ग्राफ जो बताया जाता है वो ग्राफ को पढ़ने का एक तरीका होता है, Hmm. ठीक है। कि हमने हमेशा पढ़ा है कि जी इवन 9-10 में हमने ग्राफ पढ़ा है, फ्रीक्वेंसीज पढ़ी है, पाई चार्ट्स पढ़े हैं, तो हम बताते हैं कि जी ये है इसकी इतनी परसेंटेज है, ये है इसकी इतनी परसेंटेज है, ये है इसकी परसेंट। अब आपका जो आंसर था हैपैजेड था। कहाँ से कुछ, सॉरी कुत्ते बिल्ली आप कहाँ से पिक करे समझ नहीं आ रही थी। मैंने एक सिस्टमेटिक पहले हाईएस्ट वैल्यू दी फिर लोएस्ट वैल्यू। वो इस पैरामीटर को वो चेक करता है कि आप कितना सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक नहीं, फ्रेज सेंटेंस कहा ना आपने, कहा डॉग्स एंड ये आपने फ्रेज नहीं कहा। फ्रेज कहना है, सेंटेंस कहना है। भले हैपैजेड जार, सेंटेंस तो तुम करे।
मतलब कि आप उसको कोई भी आप पॉइंट को पिक करें, उसको एज ए सेंटेंस की फॉर्म में लेकर आए। एग्जैक्टली। चलिए अब ये जैसे ये पिक्चर है ना, इसमें कोई वो है, जैसे हम अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसमें क्या लॉजिक, आप उसको कैसे पढ़ेंगे, राइट? इसमें आप जुमले बनाएंगे। देयर इज अ ब्लू क्लियर स्काई इन द बैकग्राउंड, देयर आर लॉट ऑफ सीन्स, राइड्स, हाँ राइड्स, राइट। देयर इज अ वेरी आई कैन बिग, सी, हाँ जरूरी नहीं आई है। कैन सी अ ब्यूटीफुल पार्क, हाँ ग्रीन पार्ट, ग्रीन, हाँ, ऑब्वियस। अब मतलब मैं इसको इस तरह, आई कैन सी अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी which is about an amusement park. In the background there is a big castle which has 4 towers. There are also a number of balloons which are floating in the air. There is a lot of green grass and green trees. There is some tent in the colors of red and yellow. A lot of rides are playing around, are working around, or there are a lot of rides for children to have a ride. तो कहीं नहीं लिखा हुआ, पर लॉजिकली डिस्क्राइब किया एक तस्वीर को कि क्या है, ठीक हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या कोई टेम्पलेट की सेंस है? कहाँ इसमें कोई टेम्पलेट तुक करते हैं? दैट व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग, टेम्पलेट्स डोंट मैटर। टेम्पलेट का तो मतलब यही है ना कि फॉर एग्जांपल आपने जो स्टार्टिंग वर्ड्स पिक करने हैं, हाँ ऑब्वियसली आपने सेंटेंस को उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपने वर्ड्स ऐड करने हैं ना, तो टेम्पलेट तो यही हो गया ना जो। लेकिन ऑब्वियसली आपने इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, तो आपने स्टैटिक नहीं होना, टेम्पलेट थोड़ा सा स्टैटिक हो जाता है। हम्म। सवाल हम्म। वही का ना कि तुम डिस्क्राइब में क्यों देता है, हर सवाल की वैरायटी डिफरेंट है, डिफरेंट है। ठीक है? तो वैरायटी में आप टेम्पलेट स्टैटिक हो जाता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि समटाइम्स ये चीजें हम इम्प्लीमेंट करते हैं पता होने के बाद, लेकिन मार्क्स ही अब मुझे नहीं लगता, मैं वही बात को आप कर रहा हूँ ना कि मुझे लगता है कि मैंने ये चीजें की है, लेकिन अगर मैं सेम स्ट्रेटेजी के साथ जाऊंगा, सेम वही चीज जो पहले मैं की है, तो ये ना हो कि यही चीजें फिर रिपीट हो जाए। नहीं होगी, देखिए आपकी गलती जो थी ना, आप एक नेचुरल प्रोसेस नहीं ले रहे, आप बहुत फास्ट कह रहे हैं, आपके खुद लफ्ज जो है वो सुनाई नहीं दे फास्ट मैं इस चीज को मैं करता हूँ कि फास्ट तो हूँ, क्योंकि रही। जब मैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसका एक पैरामीटर था जिसके ऊपर मुझे उसने फास्ट किया, वो था एप्यूनी। एप्यूनी आपको वो पता कि इसमें जब मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ता हूँ उसमें मुझे प्रोनाउंसिएशन के वो अच्छे मार्क्स देता है। मैं समझता हूँ कि एक्चुअल में भी ऐसा होता हो। नहीं नहीं ठीक नहीं, है। नेचुरल है ना आप। तो इसकी सिंपल ट्रिक ये है कि आप जो भी रिकॉर्ड करें, किसी को सुनाएं, उसको बोले समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, हम्म। ठीक है? तो मैंने जो ट्रिक्स बताई है ना, वो करें आप, और फिर आप देखें कि पहले आपके मार्क्स कितने आ रहे थे डिस्क्राइब इमेज में, और अभी हाईएस्ट स्कोर देखिएगा कि हाईएस्ट मेरे कितने डिस्क्राइब इमेज में आ रहे थे, और ये जो तरीका है इसमें कैसे कितने आ रहे हैं, ठीक है? इसी हम्म। तरह रीड अलाउड का भी देखिएगा, जो मैंने स्टेप तरीका बताया, तरीका कार बताया। इवन ऐप यूनी भी इतनी जालिम नहीं है। हाँ, ऐप यूनी भी आपको नेचुरल टोन पे दे देती है मार्क्स। सिर्फ ये है कि आप सेलफोन सही में है। प्रैक्टिस करें, असल में लैपटॉप थोड़ा सा एको करता है। कोई हेडफोन्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, एक सेलफोन उठाएं, उसको मुंह के पास लेकर आए और एक डिस्क्राइब इमेज पढ़ लें, ठीक है? और वही क्वेश्चन आप लैपटॉप पे पढ़े, आप देखेंगे मार्क्स का डिफरेंस होगा, क्योंकि लैपटॉप थोड़ा एको और करता लैपटॉप के ऊपर से तो मैंने 90/90 भी लिए हुए हैं डिस्क्राइब इमेज के अंदर। है। हाँ इसमें भी इसने आई हूँ 85, 89, वो भी हाँ, मेरे पास पड़े हो। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम मोबाइल फोन ऑब्वियसली इसका माइक थोड़ा सा अच्छा होता है, ये आपको अच्छा स्कोर दे रहा होता है, मैंने खुद इसको एवेल्युएट किया जो आपका जो मैं है माइक के। मॉक देख रही हूँ, उसमें भी आपका स्कोर नहीं है जिस तरह आप बता रहे हो। आपका इवन जो है, हम्म, आपकी जो है ये आपका रियल एग्जाम, वो भी डिफरेंट स्टोरी बता रहा है, ठीक है? तो और आपने मॉक कितने किए थे, जरा ये बताएं। अभी तो रिसेंटली जो मैंने दिया था उसमें तो मैंने एक मॉक दिया था। नहीं, आपको देखिए, एक मॉक से कहानी नहीं बनती, वैरायटी ऑफ मॉक्स ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए, और तब तक देने चाहिए जब तक आपको डिजाइन स्कोर नहीं आ जाता, कम से कम 4-5 दफा आपका डिजाइन स्कोर जब तक नहीं आता, आपको मॉक देते रहना चाहिए था। मैंने 60 से शुरू किया, जब मैं करने लगी ना तो मेरे 60 आते थे, 60 से करते 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 हम्म। करते मैं 80 भी गई, जब तक मेरा 8 ईच नहीं आ रहा था तब तक मैंने एग्जाम नहीं दिया। ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो मैं समझता हूँ कि इसमें, लेकिन मैं इंडिविजुअल की प्रैक्टिस ज्यादा करता रहा हूँ। ऑब्वियसली वो को आपको एक ओवरऑल सेशन के थ्रू आपको, लेकिन मुझे जो हर्डल्स आती है ना जिन पॉइंट्स के ऊपर, मैं उनकी प्रैक्टिस ज्यादा, मुझे स्पीकिंग पार्ट पे ज्यादा हर्डल्स थी।
उसके बाद जो इंडिविजुअल थे। हाँ तो नहीं, आपकी तो आपके सामने मैंने खोल के दिखाई ना। आप कोई एक हम रीड आपका रीड अलाउड देख लेते हैं जिसमें हाईएस्ट मार्क्स हो। चलिए 76 वाले ही देख लेते हैं, देखते हैं इसमें आपने कुछ क्या। Agricultural problems due to climate change of normal weather. Water depletion and collapse of soil have become big problems in all parts of the world. Many are focusing on ethics and family farming as they combat these issues. देखिए आगे अच्छे खासे कॉजेज हैं जहाँ नहीं होने चाहिए थे। आई डोंट थिंक सो कि इतने इतने